नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखिए हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहा गया है इसे नोवेल कोरोना वायरस? क्यों कहा गया है इसे नोवेल कोरोना वायरस? चलिए करते हैं इसे समझने का साहस। क्यों कहा गया है इसे नोवेल कोरोना वायरस? चलिए करते हैं इसे समझने का साहस। So today we are going to learn history of novel. We are going to learn history of novel. Let's solve the puzzle and secret unravel. Let's solve the puzzle and secret unravel. So let's try to understand. 18th century ने लिटरेचर को न्यू गिफ्ट दिए दो। 18th century ने लिटरेचर को न्यू गिफ्ट दिए दो। छोटों ने बड़ों से कहा जियो और जीने दो। छोटों ने मीन्स कॉमन पीपल ने अमीर लोगों से कहा कि जियो और जीने दो। 18th सेंचुरी ने लिटरेचर को न्यू गिफ्ट दिए दो। छोटों ने बड़ों से कहा जियो और जीने दो। Those two forms were periodical essays and novel. Those two forms were periodical essays and novel, including all the consonants of English and vowel. Including all the consonants of English and vowel. इसमें नॉवेल का हुआ बड़ा बोलबाला। इसमें नॉवेल का हुआ बड़ा बोलबाला। पीरियडिकल एसेस को मानो नॉवेल ने धो डाला। पीरियडिकल एसेस को मानो नॉवेल ने धो डाला। नॉवेल caught the spirit of 18th century. Novel caught the spirit of 18th century and worked as the common people's trustworthy jury. And worked as the common people's trustworthy jury. What was the spirit of 18th century? What was the spirit of 18th century? Let's read more and solve our query. Let's read more and solve our query. So spirits क्या थी 18th century की? Try to understand. Spirits were intellectual, sentimental and realistic. Spirits were intellectual, sentimental and realistic. Novel caught it and became real life and fantastic. Novel caught it and became real life and fantastic. Now let's move towards definition and meaning. Let's move towards its definition and meaning. Let's move towards its definition and meaning and enjoy English literature's new inning. And enjoy English literature's new inning. So novel is a long story, narrative and fiction. क्या होता है नॉवेल? एक लॉन्ग स्टोरी है, नरेटिव और फिक्शन है। मीन्स काल्पनिक बातें होती है इसमें ज्यादातर। नरेटिव यानी कोई सुनाता है इसमें। सो नॉवेल इज अ लॉन्ग स्टोरी, नरेटिव एंड फिक्शन. इट वॉज रिलेटेड टू पास्ट ह्यूमन एक्शन. इट वॉज रिलेटेड टू पास्ट ह्यूमन एक्शन. व्हाट इट डिस्क्राइब्स? अभी डिस्क्राइब क्या करता है नॉवेल? नॉवेल डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस इन प्रोज फॉर्म. Novel describes intimate human experience in prose form. Now let's see where the word novel came from. Novel describes intimate human experience in prose form. Now let's see where the word novel came from. So, आगे देखिए. Novel derived from Italian word novella. Novel derived from Italian word novella. Click the bell icon and subscribe नैन की पाठशाला. Click the bell icon and subscribe नैन की पाठशाला. Novel is an Italian word. It means new. Novel is an Italian word. It means new. This is the fact known by very few. This is the fact known by very few. So what's the meaning of novel? Novel means new. So स्टार्ट में जो कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखिए हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। नोवेल मीन्स न्यू कोरोना वायरस. इट मीन्स दैट कोरोना वायरस पहले भी था बट वो इतना डेंजरस नहीं था. ये नई तरह की बीमारी आई है कोरोना, इसीलिए उसे कहा गया है नोवेल कोरोना वायरस. सो यही न्यू फॉर्म लिटरेचर में आया है जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम नोवेला. नोवेला मीन्स न्यू and that's why it is known as novel. The novel embellishes time, place, nature. Novel embellishes time, place, nature, including people's minds, activities and gesture. क्या embellish करता है? मतलब किन किन बातों को संवारता है? Novel embellishes time, place and nature, including people's minds, activities and gestures.
नॉवेल क्रिएटेड द पिक्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। नॉवेल ने क्या क्रिएट किया? उस वक्त की सोसाइटी का पिक्चर। नॉवेल क्रिएटेड द पिक्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, हेंस इट बिकेम वेरी फेमस अमंग द पीपल ऑफ ऑल द टाइम। इसीलिए नॉलेज इतना फेमस हो गया अमंग द पीपल ऑफ ऑल द टाइम। नॉवेल क्रिएटेड द पिक्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, हेंस इट बिकेम वेरी फेमस अमंग द पीपल ऑफ ऑल द टाइम। नॉवेल मेक्स लाइफ इजी टू अंडरस्टैंड। नॉवेल ने जो लाइफ अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी कर दिया, इजियर, विच वॉज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इन प्रोज एंड पोएट्री। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉवेल मेक्स लाइफ इजी टू अंडरस्टैंड। ड्रामा एंड पोएट्री वर हार्ड टू अंडरस्टैंड। इससे पहले जो पोएटिक फॉर्म हुआ करते थे वो थे ड्रामा एंड पोएट्री, जिसमें अगर लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता तो हार्ड टू अंडरस्टैंड होते, बट नॉवेल की वजह से इजी हो गया। नॉवेल मेक्स लाइफ इजी टू अंडरस्टैंड। Drama and poetry were hard to understand. History of novel is of 2000 years ago. History of novel is of 2000 years ago. Greek romances had much more to know. Greek romances had much more to know. So novel की जो हिस्ट्री है 2000 साल पुरानी है, उसमें बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं ग्रीक रोमांसेस। अब ग्रीक रोमांसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेट्स सी। ग्रीक रोमांसेस, it was the collection of tales from 2nd to 6th century. It was the collection of tales from 2nd to 6th century. Imaginative, delightful, marvelous adventures and ideal love story. क्या था इसमें रोमांसेस में, ग्रीक रोमांसेस में? It was the collection of tales from 2nd to 6th century. Imaginative, delightful, marvelous adventures and ideal love story. देन अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ नॉवेल। नॉवेल के शुरुआत के एग्जाम्पल्स कहाँ पे मिलते हैं? अर्ली थ्रेड ऑफ नॉवेल फाउंड इन वर्जिल्स इक्लॉग्स। वर्जिल इज ऑथर, नॉवेलिस्ट, एंड हिज नॉवेल्स नेम वाज एक्लॉग। उसके नॉवेल का नेम था एक्लॉग। सो अर्ली थ्रेड ऑफ नॉवेल फाउंड इन वर्जिल्स इक्लॉग्स which contained Virgil's 10 famous dialogues. Which contained Virgil's 10 famous dialogue. इसमें 10 पार्ट है, इसमें उसके स्टोरीज है डिफरेंट टाइप्स, इसलिए कहते हैं 10 फेमस डायलॉग, हम यहाँ पे इसे नाम दे रहे हैं। सो अर्ली थ्रेड ऑफ नॉवेल फाउंड इन वर्जिल्स एक्लॉग्स which contained Virgil's 10 famous dialogues. थॉमस मैलोरी रोट ले मॉर्टे द आर्थर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अर्ली थ्रेड ऑफ नॉवेल जहां पे हमें मिलता है। थॉमस मैलोरी रोट ले मॉर्टे द आर्थर, praise the work of legendary King Arthur. Praise the work of legendary King Arthur. Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. थर्ड एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलता है। Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales remained unfinished, included 24 tales. Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales remained unfinished, included 24 tales. Geoffrey Chaucer की जो स्टोरी है द कैंटरबरी टेल्स, इसकी इच्छा थी कि बहुत सारी इसमें स्टोरीज लिखे, बट बिकॉज ऑफ हिज डेथ he couldn't complete, but he could write only 24 tales. So last example उसमें हम देखते हैं, Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales remained unfinished, included 24 tales. So hope you understood about novel. So now let's see at last. नॉवेल है कोरोना, बंद है शाला। नॉवेल है कोरोना, बंद है शाला। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नयन की पाठशाला। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नयन की पाठशाला।